नमस्कार। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला के अंतर्गत साहित्य अकादमी के स्टॉल पर पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में हम प्रतिष्ठित कवि रॉबर्ट बर्न्स की 20 कालजयी कविताओं के हिंदी अनुवाद का लोकार्पण करने वाले हैं। अनुवाद किया है श्रीमती अंजू रंजन जी ने, जो हिंदी इंग्लिश की प्रतिष्ठित लेखिका और अनुवादिका है। और हमारे बीच मौजूद है पुस्तक के लोकार्पण के लिए प्रोफेसर अनीसुर रहमान जी, जो अंग्रेजी के प्रख्यात विद्वान और तुलनात्मक साहित्य के प्रतिष्ठित अध्येता हैं। साहित्य अकादमी की तरफ से आप दोनों का हार्दिक स्वागत है। और औपचारिक स्वागत के लिए मैं अनुरोध करूंगा हमारे सचिव डॉक्टर के श्रीनिवास राव को कि उत्तरीय के द्वारा उनका अभिनंदन करें। मित्रों, इसके पहले कि लोकार्पण का कार्यक्रम आरंभ किया जाए, मैं सचिव साहित्य अकादमी से अनुरोध करूंगा कि इस अवसर पर आपका स्वागत करें। ये वक्त है ज़्यादा बोलने का नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा समय देना चाहिए अनुवादिका को। जिस तरह से पिछले कम से कम मुझे लगता है कि 2-3 साल से अकादमी में इसका प्रोसेस चल रहा था। उसका पहले अंजू जी ने जब स्कॉटलैंड में इंडियन मिशन में जब काम कर रही थी, कनेक्ट किया और उसके बाद में बहुत अनुवाद किया। साउथ अफ्रीका भी गई थी, वहाँ भी इसी काम में लगी थी। तब से हम लोग के साथ संपर्क में थे। पिछले 4-5 साल से इसकी प्रोजेक्ट चल रही है। आज उस किताब का रिलीज़ हो रही है और अंजू जी के बारे में ज़्यादा बोलने का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सब लोग जानते हैं। नॉट ओनली जस्ट शी इज़ अ फॉरेन ऑफिसर, बट आल्सो शी इज़ अ very good short story writer, poet, and now proved to be a wonderful translator today, and very wonderful administrator too, and also very humorous also. It is also. Thank you, Anju ji, for giving us such a wonderful opportunity for publishing Robert Burns in Hindi. I think it may be a first collection also in Hindi. It is a wonderful. भारतीय हिंदी समुदाय के लिए एक रॉबर्ट बर्न्स की कृतियों की पहली बार आप उपलब्ध करवाएं, इसके लिए अकादमी की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और मैं ऑल्सो एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू प्रोफेसर अनीसुर रहमान जी, इज ऑलवेज सो काइंड टू अकादमी, whenever we call him, is always with us. And also wonderful galaxy, though it is not a big number, but a cream kind of people we have. Rahul Bedi ji came all the way from America because we are going to release her book next. Is Madam's book we are releasing. And Rekha Sethi ji and Hina ji and Chandana ji, all those are they have contributed well to the academy and in the forthcoming publication that we are going to release after this event. So without taking much of your time, once again I welcome all of you. Thank you so much for making this event with a short but creamy and galaxy audience. And let us start with Anju ji, because she will read in between the poems, and also she will share with us the journey of this particular project, not your whole journey, but particularly why you choose this Robert Burns. Though you have traveled widely in the world, in many countries you have served, but only why you have chosen this particular poet to be translated, and also what kind of difficulties you have faced in correcting, in translating, because it's completely considered translation from Scotland to India. What kind of difficulties you have faced in the translation, and also of course you are free to speak whatever you wanted, so kindly. I think you book release करें पहले, ठीक, okay. So we will release the book first.
Now over to Anjuji. Thank you so much. First of all, I would like to thank the Secretary Sahitya Academy for, he was not knowing me, who I am, kind of. I wrote a mail to him. I'll start that how I thought of like, I already had translated few poems. Then I wrote a mail to him that I want in Sahitya Academy to take up this project, because this is the first time we are thinking to translate Robert Burns into Hindi. And without knowing me, without seeing the text and all, he was like very much excited about this idea that Robert Burns is translated in Hindi. So he said, yes, we are okay with it. So you send me the book and all. So that's how we started. It went through different committee. I kept sending different draft, but somehow here, this one draft which I had sent earlier was going through the committee and all, and then he took all the pen to get it approved from the committee for translation, because you all know that if you are translating a book from Sahitya Academy, it goes through a lot of process, because it's a government organization, so you have to be like very perfect also and patient also. So so thank you so much, sir, for being in this journey with me and always being very patient and then explaining ho jayega and all, you know. So every time I go with angry, I'll come back having tea and biscuit in his office, then I'm happy, ho hi jayega. So kind of. So then finally it is done. Thank you so much. How I came to know about Robert Burns, I was not knowing, because I was never a student of English. I studied chemical engineering and I was doing MTech from IIT Delhi, and then got selected for the Indian Audit and Account Service and later Foreign Service. So I left my MTech in between and I joined the services. So anything about to do with the literature and all, it was like not with the English literature, not at all aware I was. Only thing I was knowing few very famous poems of William Wordsworth, Keats and all, जिसको हम लोग सब बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश के कोर्स में. So those are the poem I was knowing. So when I was in Scotland, I saw an invitation card from the First Minister of Scotland, which is like Prime Minister. And I saw, oh, so Prime Minister is inviting for something. So then I opened the card and it was the Burns Supper. So then I said, what is this Burns Supper? I searched the internet, then I found out that the Robert Burns was the national poet of Scotland. For like, even now he's the national poet, but in his honor, on his birthday, which is 25th of January, Scotland government celebrate Burns Supper in the Scotland Parliament, and there I was invited. So I said, obviously I'll go. I was very excited. I read a little bit about Robert Burns, and then I was like given the seat. That was all coincidence, no planning, nothing. I was sitting next to the First Minister. So then I was thinking, why, like, you know, they gave me a seat next to the Pradhan Mantri. So later I was told that, okay, you came in December and this was like in January. So the first Consul General, which is like newly arrived, they welcome him or her like this. So I was sitting next to the First Minister and I was sitting here, and then she was asking, so today you will have haggis. I was not knowing what is haggis. So then she said that it is a dish prepared from the all the leftover part of the lamb or sheep or goat, and then that is the goat meat you will eat today with us. Then only you will accept you in Scotland. She was joking with me. So I said, ma'am, is there any vegetarian option? So then I had vegetarian haggis, and after that this Burns Supper, they got up and then we were singing the Auld Lang Syne. I was singing that in car also, and if you permit, I'll sing 2 lines. So this song is like this. Should old acquaintance be forgotten, never brought to mind? Should old acquaintance be forgotten, never brought to mind? For Auld Lang Syne, my friend, for Auld Lang Syne, we'll take a cup of kindness yet for Auld Lang Syne. So this was the song. They sing, like, you have to stand like this, so your hand will be here, and
everybody will be standing and singing and then going into the circle. So I sang with First Minister. So when I came back, I went through more search about Robert Burns and all. She said that her constituency is in the Alloy area, which is the birthplace of Robert Burns. So I visited there, and that's how the Burns Museum, I saw there were hundreds of translation of Robert Burns in hundreds of world languages was there. I was looking for a Hindi translation. So is there any Hindi translation or Indian language translation, Bengali or something like that? So no, nothing. So then I thought, okay, I'll ask some very eminent Indian poet or author to translate Robert Burns into Hindi. And I contacted many, but they said no, Scottish English is very difficult, we won't be able to do it. So somebody came and then said, मैडम आप ही कर दीजिए, मैं भी यही सोच रही थी पर कोई बोलेगा जब ही करूँगी. So that's how I translated it. And when I was translating them, I did not translate Bhardwa Bhartim kind of thing. I thought कि भाई इसको हिंदी में पढ़ेंगे लोग तो कैसे समझेंगे क्या लिखना चाह रहे थे वो. सोसाइटी 17th सेंचुरी की सोसाइटी के बारे में लिखना चाह रहे हैं. जब इंडिया में जिस तरह से अभी हमारे यहाँ अभी भी है कि हम लोग भूत में विश्वास करते हैं इस तरह का, तो वो एक कविता है टैमो शैम्टर, उसमें वो है कि जब जो टैम है वो आ रहा है कहीं से शराब पी के तो उसको भूतनी पकड़ लेते हैं. तो ये कविता है टैमो शैम्टर, एंड उनकी जो घोड़ी है वो भूत से भागने के लिए वो दून का ये क्रॉस कर रहे हैं, ब्रिज क्रॉस कर रहे हैं. सो होल टैमो शैम्टर इज़ ऑन दैट नाइट, एंड जब भूतनी उसको खींचती है, भूतनी पकड़ लेती है घोड़े को, और घोड़े को ये बहुत ज़ोर से बोलता है नहीं चलो चलो करके, तो आगे आती है, लेकिन वो घोड़ी का पूंछ रह जाता है भूत के पास. सो ये कविता है. इसी तरह से स्कॉट विस्की इतना फेमस है, यू ऑल नो, इट्स ओरिजिनेटेड इन स्कॉटलैंड. तो ये ही वॉज बिफोर बीइंग द पोएट ही वॉज ऑल्सो ब्रीफली द एक्साइज इंस्पेक्टर Robert Burns, and then he has written the poem on Scotch whiskey, and he has praised Scotch whiskey like anything. That there is always competition between the British and French, and they said आप French लोगों के तरह नहीं, आप स्कॉच विस्की पियो, उसको हैगिस दो और स्कॉच विस्की दो अगर आप स्कॉटिश लोगों को खुश करना चाहते हैं तो. ही हैज़ प्रेज्ड हैगिस, ही हैज़ प्रेज्ड स्कॉच विस्की. जो स्कॉटलैंड का कल्चर है, कुलिनरी कल्चर, जो वहाँ का सोशल ट्रेडिशंस है, वो है मैंने उन कविताओं में. उसी तरह से जो राजनीतिक ये है कि किस प्रकार से स्कॉटलैंड के लोग जो थे वो कितने बड़े देशभक्त थे. जब ब्रिटेन के साथ उनका युद्ध हुआ तो हाउ दे आर लाइक यू नो काइंड ऑफ सेविंग देयरसेल्फ, हाउ दे आर मेकिंग स्ट्रैटेजी, युद्ध को कैसे आंखों देखा हाल वर्णन करते हैं. तो आई ट्राई टू कैप्चर दोज पोएम. वन ऑफ दिस पोएम इज़ द कोट ऑफ आर्म्स. आपने ये पढ़ा होगा, बहुत फेमस लाइन है, गॉड सेव द किंग. दिस इज रिटन बाय रॉबर्ट बर्न्स. द गॉड सेव द किंग, उन्होंने आगे लिखा है, वो नहीं लिया. गॉड सेव द किंग बट डोंट फॉरगेट द कॉमन मैन. सो दिस इज़ द वन कि हमें बहुत अच्छी बात है कि भगवान राजा को बचाए, पर आम आदमी को भी भगवान नहीं भूले. तो ये एसेंस है जो मुझे लगता है कि उनकी जो ये था, मन था, वो आम जनों के साथ था, क्योंकि वो हमेशा याद करते हैं कि वो कैसे पुराने दिनों में, जैसे ऑनलाइन साइन भी है, कि कैसे पुराने दिनों के नाम पे हम लोग फ्रेंडशिप को कायम कर सकते हैं, कैसे हम फॉरगिव कर सकते हैं और कैसे हम प्रेम कर सकते हैं. कुछ कविताएं हैं जो एक ये है जिसमें है कि 50 साल शादी के होने के बाद जो ओल्ड कपल है, हाउ दे लव ईच अदर. सो उसी तरह से एक पोएम है जो अपने यंग एज में 18 ईयर का यूथ हाउ फर्स्ट लव को विदा कैसे करता है. सो दीज आर द पोएम. देयर आर सम कलर्स ऑफ लव, some colors of politics, some colors of social awareness, then culinary, then so lot of things. He has written poem on to a louse, जूं के लिए, जो जूं बाल में पड़ जाता है, एंड जूं के माध्यम से समझाते हैं कि कैसे हम दूसरों की नज़र से खुद को अगर देख सकते हैं तो हमें जो इतना गर्व है खुद पर. एक लेडी के बोनट पे जूं बैठता है, दैट लेडी डजंट नो कि मेरा जूं इधर रेंग रहा है. ऑब्वियसली ब्रिटेन के लोग ज़्यादा नहीं नहाते थे, अभी भी नहीं नहाते, तो दे यूज्ड टू गेट लाउस वेरी. नो, शी विल एग्री विथ मी.
So वो बहुत जूं घूम रहा है, लेकिन she doesn't know kind of. ये वही है कि अगर वो देख पाती, दूसरे आदमी को दिख रहा है, पोएट को दिख रहा है वो जूं को बोलता है हाउ डेयर यू, तुम उधर बैठ गए। उसके बाद लास्ट सेंटेंस में वो औरत के लिए बोलता है कि वो जो इतना इतरा रही है और ज़बरदस्ती का जो इतना डिवोशन दिखा रही है, अगर वो जान पाते कि उसके ऊपर जूं रेंग रहा है तो ये नाटक खत्म हो जाता, something like that. So that's a very interesting poem, that how this small creature can, like, feature in his poem, and through that he given a very nice social message, and also the human tendency, how we see ourselves. We don't introspect, we don't see how others see us. So that's a very nice one. Last one I will mention, because he has also written a poem called To a Mouse. So mouse again, and ये बहुत sensitive poem है, क्योंकि एक माउस होता है और उसने अपना घर बनाया हुआ है उनके खेत में। तो ही वॉज ऑल्सो अ किसान, राइट, उनके फादर किसान थे। वो हल चलाते हुए उसका घर टूट जाता है, मतलब बिल टूट जाता है चूहे का। सो ही हैज़ रिटन ऑन दैट कि कितना दुख है, तुमने कितना मेहनत से ये बिल बनाया होगा और उसके बाद ये घर तुम्हारा टूट गया, लेकिन काइंड ऑफ तुमने कितना प्लान किया होगा, तुम ठंड में ऐसे बचोगे, अगर तुम्हारे पास घर रहेगा तो, और तुम्हें ठंड नहीं सताएगी, यहाँ तुम अपनी फैमिली बनाओगे, लेकिन देखो ऐसे तुम्हारा घर टूट गया। सो देन सेड कि इसी तरह से वो फिर ही टेक इट टू द ह्यूमन बीइंग, हम कुछ भी प्लान करते हैं हम एक्सक्यूट नहीं कर पाते। अक्सर हमारे प्लान जो है फिसड्डी साबित होता है, चाहे वो चूहा प्लान करे या आदमी प्लान करे, प्लान इज द प्लान। मैंने गॉड अगर उसको नहीं चाहे तो वो नहीं होता है। फिर भी जब तुम चूहे हो तो तुम हमसे महान हो, तुम हमसे इसलिए महान हो क्योंकि तुम्हें सिर्फ अभी की चिंता है, यू नेवर थिंक अबाउट द फ्यूचर। और मैं एज ए ह्यूमन बीइंग, मैं पीछे के बारे में नॉस्टैल्जिक होकर सोचता रहता हूँ, हाउ नाइस इट वाज, एंड देन आई एम वेरी वरीड अबाउट माई फ्यूचर। मैं वर्तमान में जीता ही नहीं, तो तुम मेरे से बहुत बेहतर। दैट्स अ वेरी फेवरेट पोएम ऑफ माइन, टू अ माउस, जो उन्होंने लिखा है, वेरी नाइस पोएम। और ये जो अभी जो मैंने गाया ऑल लाइन्स हैं, इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने सेजे पुराने दिनेर कथा करके बांग्ला में लिखा था, पर उसका भी ऊपर उन्होंने ट्यून वगैरह सब यही वाला लिया। तो वैसे ही है, कोई बंगाली होगा तो उसको गा सकता है, तो मैंने भी सीखा था। हाँ, तो वो गा सकते हैं, पुराने से दिनेर कथा भूल भी न की हाय, समथिंग ऐसा है वो गाना। तो मैंने उसको हिंदी में ट्रांसलेट किया है, और आई ट्राइड कि वो ट्यून जो है मेंटेन रहे, अगर आप हिंदी में भी गाएंगे तो कोशिश किया मैंने। और एक और जो चीज़, जो ट्रांसलेट आप करते हैं तो पोएम के पहले बैकग्राउंड नहीं रहता। मैंने सोचा कि जब हम स्कॉटिश पोएम को ट्रांसलेट कर रहे हैं, आई शुड गिव लिटिल बिट बैकग्राउंड अबाउट द पोएम, व्हाई दिस पोएम वाज रिटन, व्हेन इट वाज रिटन, इसका क्या सिग्निफिकेंस है, वाज देयर एनी अदर पोएम इन द सोसाइटी प्रिविलेंट लाइक दैट। सो ऐसे करके हमने थोड़ा सा एक बैकग्राउंड देने की कोशिश की है। तो मुझे लगता है पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगेगा, कि जो लोग पढ़ रहे हैं उनको ये पढ़ने में बहुत मन लगेगा। और जो लिखने का जो प्रक्रिया है, स्कॉटिश इंग्लिश था ये, तो थोड़ा सा दिक्कत है कि भाई स्कॉटिश इंग्लिश में जैसे लैस है, तो लड़की को लैस बोलते हैं, और ये बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं, जैसे कट्टी सरक, तो कट्टी सरक इज लाइक शॉर्ट स्कर्ट। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो टिपिकल स्कॉटिश और गैलिक वर्ड हैं, तो उसको मैंने सीखा, कुछ कुछ कोशिश किया मैंने पीछे दे देने के लिए, कि भाई जो छोटा छोटा जो है उनको समझ में आए कि इसका ये मतलब है। अब जैसे कहीं नहीं लिखा उन्होंने कि उनको हेरिंग की तरह भूनेंगे, ऐसे कहीं है। तो हेरिंग इज अ फिश एक्चुअली विच इज़ फाउंड इन द नॉर्दर्न सी। तो मैंने कहीं लिख दिया है कि भाई हेरिंग मछली का प्रजाति है जो मिलता है। आई हैव ट्राइड टू मेक इट मोर रीडेबल एंड एक्सेप्टेबल। अब नाउ इट इज़ अप टू साहित्य अकेडमी हाउ मच दे एडवर्टाइज and how much they distribute, and the readers how much they like it. Anyway, thank you so much for being here, and मेरे लिए it's like 5 years dream come true, so I'm very happy I could write, and it's a little tribute to Robert Burns, who has been so much widely known and revered in the Western world and now in India also. Thank you so much. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद अंजू रंजन जी। और मित्रों, मैं अब आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर अनीसुर रहमान जी से अनुरोध करूंगा कि इस मौके पर कुछ बोलें। राव साहब, अंजू जी और हमारे सारे दोस्त यहाँ बैठे हुए हैं, लेखक हैं, कवि हैं, क्रिटिक हैं, ट्रांसलेटर्स हैं, तो आपसे अच्छी कंपनी तो हो नहीं सकती थी इस किताब के लिए। तो सबसे पहले तो मुबारकबाद आपको, बहुत बधाई साहित्य अकेडमी को जो इसने छापा, और बहुत बधाई अंजू जी को कि आपने इसको ट्रांसलेट किया हिंदी में। रॉबर्ट बर्न्स की एक कविता है जो हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी के बीए के सिलेबस में है, उसका नाम है, जो इसमें नहीं है, I don't know how you have missed on that. That very famous poem is "My love is like a red." अच्छा, तो अगर है तो उसको पढ़ के सुनाइएगा या मैं सुना दूँगा। वो बहुत मशहूर पोएम है, और हम लोग जब क्लास में सिमिली बताते कि सिमिली क्या होती है, तो कहते थे कि लाइक वर्ड हो और एज वर्ड हो तो सिमिली, तो उसका एक्सप्लेनेशन देते थे, माई लव इज़ लाइक रेड रोज। साहित्य अकेडमी में हम बैठे हैं, कविताएं इंग्लिश की हैं, ट्रांसलेशन हिंदी में है, तो यहाँ आने का एक फ़ायदा ये है कि हमारी दोनों ज़बान में एक्सरसाइज होती रहती है, और अच्छा है। मेरा अपना जो थीसिस है, इस थीसिस को मैं हर जगह बोलता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन के लिए हम बेसिकली ये सब के सब ट्रांसलेटर हैं। उसकी वजह क्या है कि हम 2 ज़बानें तो जानते ही हैं, और हम 3 भी जानते हैं और 4 भी जानते हैं, मैं 3.5 जानता हूँ, तो हम बेसिकली ट्रांसलेट ही करते रहते हैं। आपने देखा होगा 2 मिनट में मैंने 2 बार उर्दू और हिंदी मिला दिया अपनी अंग्रेज़ी में। दिस इज़ द वे वी वर्क, दिस इज़ द वे वी ट्रांसलेट, दिस इज़ द वे वी कंपेयर, एंड दैट इज़ हाउ वी गो टू ट्रांसलेशंस, हाउ वी गो टू ऑथर्स। एक बड़ा सवाल है कि आप चूज़ कैसे करते हैं ऑथर को। एकेडमिक नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ऑथर को चूज़ करना ट्रांसलेटर के लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हाउ ही चूजेस और शी चूजेस एन ऑथर, which age, which language, for which reader, who is going to publish, and what are the aesthetics of that. ये बड़े मेजर कंसिडरेशंस हैं। ट्रांसलेशन पे बहुत बात हुई है पिछले ज़मानों में, पिछले 30 साल में अगर आप देखिएगा तो सैकड़ों हर साल तो पता नहीं 50 सेमिनार्स होते हैं, और अब तो कहने लगा हूँ मैं कि भाई अब मेरे पास कुछ बचा नहीं है ट्रांसलेशन में बोलने की। किताब भी लिख दी है और बहुत सारे 10-20 जगह बोल चुका हूँ, लेकिन ट्रांसलेशन इनएग्जिस्टेबल है। अब रॉबर्ट बर्न्स को चुनना एक बड़ा अनयूजुअल चॉइस है। स्कॉटिश था, ही वॉज बेसिकली एन इंग्लिश पोएट, और एक तरह से प्रेडिसेसर है ये रोमांटिक्स का। रोमांटिक्स इसके बाद आते हैं। अच्छा, बहुत छोटी उम्र थी रॉबर्ट बर्न्स की। रॉबर्ट बर्न्स बहुत जल्दी ख़त्म हो गए, एक्चुअली उसी तरह जैसे कीट्स ख़त्म हो गए बहुत जल्दी, लेकिन कीट्स बहुत बड़ा वॉइस है रोमांटिक एरा का, अर्ली 19th सेंचुरी का। अगरचे अर्ली 19th सेंचुरी का मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो शायर है वो है कोलरिज। कोलरिज के इतना बड़ा कोई शायर नहीं है, और आज तक उतना बड़ा शायर अंग्रेज़ी में अगर आप देखें कैनोनिकल में तो कम है। रॉबर्ट बर्न्स का इम्पैक्ट बहुत था, और इम्पैक्ट इसलिए था कि एक भाषा उसकी जो आपने कहा कि एक तो वो, लेकिन उसके अंदर कम्युनिकेबिलिटी बहुत है, वो अपील करता है, बहुत इमोशनल आपको बनाता है, लैंग्वेज के ज़रिए, एक्सपीरियंस के ज़रिए आपके पास आता है। So Robert Burns is one of the very popular readers among the students of English, but unfortunately he has not been translated. And this is a very nice choice that you have made by picking up on Robert Burns, because Burns needs to be introduced. हमारे बहुत से ऐसे ऑथर्स हैं जिनको हम ट्रांसलेशन के माध्यम से जानते हैं, लेकिन हमारी नज़र शायद नहीं पड़ी। बर्न्स उनमें से एक है जिस पे हमारी नज़र नहीं पड़ी थी। बहुत आपको बधाई अंजू जी। बच्चा साहब की लिखी संपादन से इनका, आप ही जब बात करेंगी तो लोग कैसे चलेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। एनीवे, तो कहने का हमारा मतलब ये है कि एक काम अच्छा हुआ ये। साहित्य अकेडमी को बधाई मैं इसलिए भी बार बार देता हूँ, कई बार दे चुका हूँ, फिर दे रहा हूँ, कि आप टेक्स्ट को जो चूज़ करते हैं वो अच्छा टेक्स्ट चूज़ करते हैं, और ट्रांसलेटर्स आप चूज़ करते हैं, उसको चुनते हैं, उसके बाद से उसका आंकलन कराते हैं। उसका एक प्रोसीजर है, बहुत अच्छा फुल प्रूफ प्रोसीजर है, जिसके बाद ये किताब आती है। किताब के मेले में किताबें आपके सामने आ जाती हैं। वैसे भी हम लोगों के पास जो किताबें आती हैं तो उसमें अब तो भाई साहब शेल्फ में जगह नहीं है कि साहित्य अकेडमी की किताबें हम और कहाँ रखेंगे और कैसे उनको, तो ये एक अलग। लेकिन उसका जैसे आपने कहा प्रचार प्रसार बहुत हो रहा है और काफ़ी अच्छा काम हो रहा है।
रॉबर्ट बर्न्स पे आपकी नज़र पड़ी है, आप चूँकि वहाँ रह चुकी हैं तो इसलिए आप उस ज्योग्राफी को, उस कल्चर को, आब हवा को जानती हैं ज़्यादा अच्छे तरीके से, उस लैंग्वेज तक भी आपकी पहुँच हुई है, ये सब इम्पोर्टेंट बातें हैं। और दो बात जो दूसरी कहने की है इस संबंध में वो ये है कि ये अगर साहित्य अकेडमी इसको पहुंचा सके अपने बुक स्टॉल्स के ज़रिए, अपने सेंटर्स के ज़रिए, तो ये एक अच्छा काम इसलिए होगा कि आजकल कंपैरेटिव स्टडीज़ पे बहुत जोर हम लोग देने लगे हैं यूनिवर्सिटीज़ में। तो ये मटेरियल है, बेसिक मटेरियल है कंपैरेटिव स्टडीज़ का, और इसके ज़रिए आप पहुंच जाते हैं एक बड़े वाइडर साइड। देखिए ट्रांसलेशन से तो आप पढ़ते हैं रीडर तक, लेकिन कंपैरेटिव स्टडीज़ से आप रीडर प्लस क्रिटिक तक पहुँचते हैं और फिर एक बड़ा दायरा हो जाता है। तो एक राइटर कैसे पहुंचता है किसी दूसरे ज़बान में, किसी दूसरे राइटर और ऑडियंस के पास, ये हमारा बड़ा इंपॉर्टेंट एंगेजमेंट है आजकल के ज़माने, स्पेशली इन द पोस्ट कॉलोनियल वर्ल्ड दैट वी आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज हाउ वी स्पीक अप, हाउ वी रीच आउट, हाउ वी आर अप्रिशिएटेड एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स वी क्रिएट फॉर आवर रिसेप्शन। इस लिहाज से देखा जाए तो इस तरह की किताबों का मैं बहुत स्वागत करता हूँ। मैं बेसिकली जो मैंने काम किया थ्रू आउट अपनी ज़िंदगी में, मैंने बहुत जगह पे ये बात कही है कि 36 साल से ज़्यादा अंग्रेज़ी लिटरेचर पढ़ाते हुए मुझे बहुत बाद में इसका एहसास हुआ कि मैं कुछ बहुत अचीव शायद नहीं कर पा रहा हूँ। तो it was a very limiting experience for me, teaching all the time British, American, फिर बाद में post colonial, Canadian, Australian, New Zealand. This was my area. Then I came to South Asia, and when I started teaching in the classroom, and when I was teaching a poet like John Donne from early 17th century, a metaphysical poet of great eminence, तो मुझे एक गालिब याद आया। और जब गालिब याद आया और जब मैंने सुनाया गालिब को और उसके साथ साथ जॉन डन को, वो देखने लगे, आँखें खुल गई। फिर मुझे लगा कि कुछ है जो हम ट्रांसलेशन और कंपैरेटिव के ज़रिए कर सकते हैं। दैट वाज द टाइम व्हेन आई स्विच्ड एंड आई केम टू ट्रांसलेशन एंड अबाउट द लास्ट, आप जानती हैं, अबाउट लास्ट 25-30 ईयर्स और मे बी मोर आई हैव बीन इन दिस एरिया। और दैट इज़ हाउ आई हैव, बिकॉज व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट, एंड साहित्य अकेडमी वुड बी द बेस्ट विटनेस टू दैट, I am trying to create not a storehouse of English literary studies but of comparative Indian English literary studies. And जब हम इंडियन बोलते हैं तो इसमें हमारी सारी भाषाएं आती हैं। तो मैं एक तरह का रिजर्वायर क्रिएट करना चाहता हूँ, और उसी के लिए मेरी जो तीसरी किताब अभी आई है जिस पर मैं साइन करूँगा हार्पर कॉलिंस में, वो गालिब पे है। उसमें 200 पोएम्स हैं, उसकी शेर हैं, उसके बाद उसका एनोटेशन है, एनोटेशन नहीं कमेंट्री। उसके पहले मैंने 1 मिनट के लिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एक इम्पॉर्टेंट गैदरिंग है कि उसके पहले मैंने गज़लों की एक एंथोलॉजी तैयार की थी जो 16वीं सदी से आज तक की सेलेक्ट गज़लें हैं, 60 पोइट्स हैं उसमें। मैंने एक जानरा पहुंचाया पाठक तक अंग्रेज़ी में। दूसरा मैंने उसके बाद उसी कॉन्टिन्यूशन में काम किया था, वो नज़मों का कलेक्शन है, उसमें भी 16वीं सदी से आज तक की कंप्लीट एक बहुत अच्छा सिलेक्शन। अब उन 2 किताबों के बाद मैंने सोचा जब मैंने एक पूरा बैकग्राउंड दे दिया तो मैं एक सैम्पल लेके चलता हूँ। तो मैं गालिब को लेके आया। उसके बाद the book is getting very huge attention all these days everywhere here and outside of it। तो मैं कर क्या रहा हूँ, मैं कर ये रहा हूँ, और आप ये जो कर रही हैं और हम सब जो लोग कर रहे हैं, वो एक तरह का हम रिजर्वायर बना रहे हैं, हम एक हिंटरलैंड क्रिएट कर रहे हैं, हम एक पीछे, हम अपने बहुत बड़ा बैकग्राउंड जिसके पीछे अगर आप जाइएगा तो बहुत दूर तक पहुँच जाइएगा। तो हम अपने लिए एक स्टॉक हाउस, एक वेयर हाउस कहिए, वेयर हाउस ऑफ लिटरेरी टेक्स्ट क्रिएट कर रहे हैं। इस लिहाज से इस तरह की किताबों की बड़ी वैल्यू है। बहुत बधाई एक बार फिर आपसे, ज़्यादा समय नहीं लेना चाहिए, मुझे भी जाना है किताब को और भी विमोचन होने वाला। तो आप सब लोग आए, सुना, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा। एक कैमरेडरी हमारी जो है ना, ये हमारी दोस्तियाँ कायम रहें, हमारी ज़बानें ऐसी ही फूली बनेंगी, हमारे अनुवाद होते रहेंगे और अनुवादों पर लिखने का काम भी होता रहेगा। इसलिए कि अनुवाद करना, तो एक साहब ने कहा, हमारे प्रशासक थे, उन्होंने कहा, मैंने उनसे कहा कि ये सब बात आप मत कहिएगा किसी पब्लिक मीटिंग में, स्पेशली जब पढ़े लिखे लोग। उन्होंने कहा अरे ट्रांसलेशन में क्या है भाई, ट्रांसलेशन के लिए 2-3 डिक्शनरी रख लो, हो जाता है। हमने कहा बस आज भर कह दिया आपने, नेवर रिपीट इट, आई हैड द करेज टू से इट एंड नो इश्यूज। तो मैंने कहा कि ये मत कहिए बिकॉज उसमें बहुत कुछ है, इट्स नॉट ईजी। आई टुक ईयर्स एंड ईयर्स एंड ईयर्स टू डू वन बुक, सो डोंट से इट। अगर डिक्शनरी से कोई ट्रांसलेट कर लेता तो भाई लफ्ज़ के आप छू के देखिए ना, डेंसिटी क्या है, वेट कितना है, वॉल्यूम कितना है। सोना और हीरा तोलते हैं तो ऐसे वर्ड भी वही सोना हीरा है भाई, तो इतना आसान नहीं है, लेकिन आपने किया और हम सब लोग कर रहे हैं। तो हम सब लोग एक तरह के को ट्रैवलर्स हैं, वी आर गोइंग टुगेदर एंड वी लेट अस विश सक्सेस टू आवरसेल्व्स थ्रू साहित्य अकेडमी एंड टू एवरीवन एल्स। थैंक यू वेरी मच।
बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर अनिसुर रहमान साहब। आपने एक कविता की ओर इशारा किया, रॉबर्ट बर्न्स की कविता, जो भारत में बहुत लोकप्रिय है और पाठ्यक्रमों में शामिल है। अ रेड रेड रोज, ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज दैट्स न्यूली स्प्रंग इन जून, ओ माई लव इज लाइक द मेलोडी दैट्स स्वीटली प्लेड इन ट्यून। इसका पूरा हिंदी अनुवाद छोटी सी कविता है, अंजू जी ने जो अनुवाद किया है वो आप सबके सामने वानगी के तौर पर प्रस्तुत है। एक सुर्ख लाल गुलाब, ओ मेरा प्रेम सुर्ख लाल गुलाब सा है जो अभी अभी जून में खिला है, ओ मेरा प्रेम संगीत के मधुर गान सा है जो मेरी प्रिय धुन में गाया गया है। प्रिय सुंदर चित्र की तरह प्रियतमा मेरी, सागर से भी गहरा मेरा प्यार है और मैं उसे तब भी प्यार करूँगा प्रिय जब तक सागर सूख भी जाए। जब तक सारे सागर सूख जाएं प्रिय और चट्टानें सूरज की गर्मी से पिघल न जाएं, मैं तब तक प्यार करूँगा प्रिय जब तक जीवन में बालू शेष न रह जाए। अलविदा तुम्हें अभी मेरे प्राण प्रिय, कुछ दिन चुभे विरह की कील, मैं फिर मिलने आऊँगा मेरी जान, चाहे दूर रहूँ 10,000 मील। बहुत बहुत बधाई अंजू रंजन जी आपकी इस पुस्तक के लोकार्पण के लिए, और अकादमी की तरफ से मैं अनिसुर रहमान साहब का और अंजू रंजन जी का, आप तमाम हजरात का, सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहूँगा। विशेष तौर पर जो हमारे प्रवासी मेहमान हैं, दिव्या माथुर जी हमारे बीच हैं, जनाब राहुल बेदी साहब हैं, उनका, और तमाम जो भारत के विद्वान हैं, तुलनात्मक साहित्य की, अनुवाद की और लेखक हैं, सबका आप अकादमी के साथ इसी तरह बने रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों तक हमारी आवाज़ पहुंच रही है, उम्मीद है कि यह अनुवाद बहुत ही जनप्रिय होगा, लोकप्रिय होगा, लोग इस किताब को अपने प्रिय की तरह चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आप सबसे अनुरोध